डियर पार्टिसिपेंट्स, ये आज का दूसरा लेक्चर जो है वो आईएपीटी RC9 की ओर से आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसको श्री आशुतोष जी जो हैं, आशुतोष शर्मा जो है वो प्रेजेंट करेंगे। ये किसके ये चल रहे हैं भाई? बंद कर दें अपने माइक, प्लीज म्यूट योर माइक, है ना। श्री आशुतोष शर्मा शासकीय महाविद्यालय धार में फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अभी रिसेंटली MPPSC से सिलेक्ट होकर आए हैं। मैं इनवाइट करता हूं श्री आशुतोष शर्मा जी को कि वह अपना जो लेक्चर है वो प्रारंभ करें। Thank you, sir. I like to thank BD Srivastava sir for giving me the opportunity to give you a lecture which is conducted by IAPT. This is a brief profile about me. If you have any query regarding this lecture, you can ask me on this email address. This is my email address. As you all know, the topic of today's discussion is approximation methods. All of you have studied in your previous classes that there are two methods to calculate the system, the energy and eigenfunctions of any system. One method is in which you calculate the energy and eigenfunction using the Schrodinger equation, and the other method is approximate methods. Many of you are aware about the Schrodinger equations, in which you must have calculated energy eigenfunction and the wave function of potential barrier, harmonic oscillator and hydrogen atom. These are exactly solvable problem. When the Hamiltonian is related to the exactly solvable problem, then we use exact methods like Schrodinger equation. But when the Hamiltonian is slightly different from the exactly solvable problem, then we use approximate methods. In approximate methods, we came across mainly three approximate methods. These are perturbation method, the variational principle and WKB method. As far as perturbation theory is concerned, perturbation theory is used when the Hamiltonian is slightly different from the exactly solvable perturbation, exactly solvable Hamiltonian. Like, consider the fact that the Hamiltonian for harmonic oscillator is half kx square. If a particle which is harmonically oscillating and you put that harmonic oscillator in external electric field, then the Hamiltonian is added by q electric field into x. If the same particle, the harmonic oscillator, is put into the magnetic field, then its Hamiltonian becomes mu dot b. Now you are seeing that Hamiltonian is slightly changed from that of the exact Hamiltonian. Perturbation, if I have to put simply perturbation, then the perturbation means disturbance. You are disturbing your exact system by slightly a small amount. Then perturbation theory is used. If now when we talk about variational method, in variational method, a variational method is used to calculate the ground state energy, and the few excited state energies, like the first excited state or second excited state or third excited state. When we can calculate the higher terms, but the kind of accuracy we get in ground state, first excited state and the second excited state, the accuracy is reduced
by certain amounts. As far as the WKB method is concerned, WKB method is used for classical limit. That is why WKB method is also known as classical method. By classical, what I mean that the wavelength should change, the potential should change in a range that is approximate or equal to the de Broglie wavelength of the system. If you are understood the perturbation theory and variational, then we will start perturbation theory in detail. What I have said in few minutes, that is all you can find in PPT, and the PPT will be, you can download the PPT from the same YouTube link after my second lecture, that is tomorrow, is over. Now, in time independent perturbation theory, what do you mean by time independent and time dependent? In this, we will talk about, we will restrict our discussion only to time independent theory. By time independent, we mean that the Hamiltonian which we will be using will not change with respect to time. That is, the probability of finding the particle in particular state will be constant or not change. The probability mod psi square will remain same as the time changes. These states are also known as stationary states. These small things, I presume that you know these small facts. In time independent perturbation theory, we assume a change in the Hamiltonian, that is H can be written as H naught plus HP. HP is the small Hamiltonian which can be considered as, if we take the same example that we have used in the earlier, that a harmonic oscillator is placed in electric field, then HP can become as QEX. In potential in magnetic field, mu dot B. Or in any other case, if you can take a potential barrier or a potential well, then if this is V naught, the difference between a potential barrier and potential field is the way from where you are looking. If you are looking from the top, that is from where you are keeping your reference level. If your reference level is this, then this is the well. If your reference level is this, then that is considered as barrier. The potential is V naught, and if we slightly change this potential to beta x or beta x square or anything you can assume, then HP is that perturbed Hamiltonian which you have changed, and H naught is the Hamiltonian for which you can exactly solve the Schrodinger equation. Like for potential barrier or for hydrogen atom, for which you have potential Z E square by 4 pi epsilon naught R square R. Okay. So if you are clear with this, then we proceed further. HP can be written as since HP is very small, it can be written as हिंदी में, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत हिंदी में भी बताने की। अभी तक जो मैंने बताया, मैंने ये बताया है कि आपके पास दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, एक अप्रोक्सीमेट मेथड और दूसरा एग्जैक्ट मेथड। एग्जैक्ट मेथड आप तब यूज करते हैं जब आपके पास जो हैमिल्टोनियन है
वो हैमिल्टोनियन आपको अच्छे से सोल्व करना था। अच्छे से सोल्व करने का मतलब है कि आप उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन इजिली सोल्व कर सकते हो। श्रोडिंगर इक्वेशन d2 psi plus dx square e minus v naught psi is equal to 0, h square by 2m, ठीक है, या h psi is equal to e psi। ये इक्वेशन अगर आप अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली सोल्व कर पा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं एग्जैक्ट मेथड। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास जो हैमिल्टोनियन है वो इस प्रकार का होता है कि वो हैमिल्टोनियन एग्जैक्टली सोल्वेबल नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए 3 मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड है परटर्बेशन थ्योरी, दूसरा मेथड है वेरिएशनल प्रिंसिपल, तीसरा मेथड है आपका WKB मेथड। परटर्बेशन मेथड हम तब यूज करते हैं जब आपका हैमिल्टोनियन स्लाइटली डिफरेंशिएट हो, स्लाइटली चेंज हो आपके एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन से। अगर स्लाइटली चेंज है तो हम परटर्बेशन थ्योरी यूज करेंगे। अगर आपको सिर्फ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है, या आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालनी है, तो आप वेरिएशनल मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन वेरिएशनल मेथड के साथ यह दिक्कत है कि आपको जो स्टेट है उसका एक ट्रायल फंक्शन लेना होता है। वो ट्रायल फंक्शन के कुछ सर्टेन पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए जिससे आप ट्रायल फंक्शन एज्यूम कर सकते हो। और जहां तक बात WKB मेथड की, WKB मेथड तब यूज करते हैं जब जो आपका हैमिल्टोनियन है वो लैम्डा के साथ क्लासिकल लिमिट में वेरी कर रहा हो। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा हिंदी में। तो हम आगे चलते हैं। सो द HP which is a very small can be written as in terms of a real parameter lambda that is very very small। अब ये किस लिए करा है? ये इसलिए करा है ताकि जब आपका हैमिल्टोनियन है वो बहुत छोटा हो जाए। W क्या है? W आपका कोई भी एक हैमिल्टोनियन का ही मान लेते हैं। अब उसको जब किसी स्मॉल छोटे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये HP ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। बेशक ये H ओमेगा कितना भी बड़ा हो, लेकिन लैम्डा अगर छोटा है और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा ही रह जाएगा। अब आगे चलते हैं। आपकी इक्वेशन आपको याद होगी, H psi इज इक्वल टू E psi। H की जगह हम पुट करते हैं H को H0 प्लस HP, और HP की जगह लैम्डा ओमेगा इंटू कैट ऑफ साई एन। साई एन कोई स्टेट है जिसमें हम पार्टिकल को एज्यूम कर लेते हैं, और एनर्जी। If you have any problem with Hindi, then do let me know in the chat box, okay? En ले लेते हैं और cat of psi। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सर आप कंटिन्यू रखें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, okay. So the exact what we have done is H0 plus HP cat of psi n is equal to E of psi n. Now H0 psi n H0 psi n just a second. Okay, we are there. H0 psi n is equal to En psi n. This equation you can solve exactly, and that is you know the Hamiltonian H0 exactly, the wave function in which the system exists, and after operating you get the energy En, that is exact energy. For example, if you take Hamiltonian to be your harmonic oscillator half m omega x square or half kx square, then you know that energy in any En state comes out to be n plus half h cross omega.
So this equation is exactly solvable equation. Perturbation theory को अब हम इसमें क्या करते हैं, हम एनर्जी आइगन को अज्यूम करते हैं कि जो एनर्जी आपके पास निकल के आएगी उसमें आपका एग्जैक्ट एनर्जी होगी और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेट एनर्जी भी निकल के आएंगी. ये पहला करेक्शन होगा एनर्जी में, ये दूसरा करेक्शन होगा, ये तीसरा करेक्शन होगा. ऐसे ही सिमिलरली जब आप वेव फंक्शन निकालेंगे करेक्ट वेव फंक्शन का, उसमें क्या होगा, आपका एग्जैक्ट वेव फंक्शन आएगा और फिर कुछ करेक्शंस आएंगे वेव फंक्शन में. ये करेक्शन और एनर्जी क्या क्या आएंगे हम आगे अभी देखते हैं. ओके, तो अब वो जो हमने पीछे निकाला था ये, अब हम इसको आगे पुट करते हैं. इस इक्वेशन में पुट करने के बाद एच नॉट प्लस एच पी कैट ऑफ साई एन एंड ई एन ऑफ साई एन. साई एन को लिख दिया था, साई एन को लिख दिया था फाई एन के फंक्शंस में. ठीक है, साई एन को हम फाई एन के बेसिस में एक्सपेंड कर सकते हैं. आई होप यू नो व्हाट आई मीन बाय बेसिस. ठीक है, तो इसमें लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो लैम्डा के कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करेंगे. अगर हम लैम्डा को जीरोथ कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो जो इक्वेशन हमारे पास आएगी निकल के वो इक्वेशन जीरोथ ऑर्डर होगी. अगर लैम्डा की पावर 1 कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगी. अगर लैम्डा की पावर 2 कंपेयर करते हैं तो सेकंड ऑर्डर होगी. और इसी के हिसाब से हम करेक्शन भी करते जाएंगे. जीरोथ ऑर्डर को हम नो करेक्शन बोलेंगे और एग्जैक्ट मेथड बोलेंगे. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बोलेंगे और सेकंड ऑर्डर करेक्शन को सेकंड ऑर्डर करेक्शन बोलेंगे. ओके, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके तीनों करेक्शन निकालते हैं. जीरोथ ऑर्डर करेक्शन भी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन भी और सेकंड ऑर्डर करेक्शन. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करेक्शन एनर्जी में निकालते हैं. ओके, अगर एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हम निकालें तो हमको क्या करना पड़ेगा. जीरोथ ऑर्डर में तो कुछ नहीं करना. जीरोथ ऑर्डर में तो आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरोथ ऑर्डर क्या है, आपका एग्जैक्ट मेथड है. एग्जैक्ट मेथड से आपको सोल्व करना आता है. अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में हमको क्या चाहिए, हमको EN1 चाहिए. अगर EN1 चाहिए, if we want to calculate EN1, then what we can use is we can multiply both sides by bra of phi n. If we multiply bra of phi n and we assume that phi n and psi n are orthogonal, then it comes out as 0. So this vanishes, phi n, then this will become phi n bracket, this also vanishes, then and phi n that is what I have written in this. Energy can be calculated by phi n of what I have explained you in that slide. The same is written here. So energy can be calculated by calculating the bracket of phi n omega phi n, and the correction to the energy now becomes as En. The total energy which comes out from the perturbation is exact energy, और जो एनर्जी perturbation करने के बाद आई है
उन दोनों का जो समीशन होगा वो आपका टोटल एनर्जी दे देगा, एग्जैक्ट एनर्जी प्लस परटर्ब्ड एनर्जी। अगर वेव फंक्शन में करेक्शन की बात करें तो वेव फंक्शन में हमको कैट ऑफ साई एन निकालना है, और कैट ऑफ साई एन के लिए हमको उसी इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। अब हमको कैट ऑफ साई एन अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे वेव फंक्शन से, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि आपका जो फाई एन है वो एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाता है, और उसको ब्रैकेट को साई एन को फाई एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर फाई एम फॉर्म्स अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं और एक जो आपका एन वाला होगा वो आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि डेल्टा एम एन डिफरेंट के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। सो फाई एम ब्रैकेट फाई एन, इससे करने के बाद उसी स्लाइड पे देखें अगर हमको ये कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट फाई एम साई एन। तो इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, यहां इसमें हम फाई एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाई एम फाई एम फाई एम, एंड we will get cat of phi n as this। phi m से जब मल्टीप्लाई करेंगे उस वाली इक्वेशन में जो आपने पहले देखी है, तो आपका ये जो पूरी इक्वेशन है ये इसमें रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका टोटल करेक्शन आ जाएगा वेव फंक्शन में, तो आपका वेव फंक्शन एग्जैक्ट सॉल्यूशन वाला और आपका वेव फंक्शन ये जो पर्टर्बेशन से आया है, इन दोनों को जब समीशन कर देंगे तो आपका टोटल वेव फंक्शन निकल के आ जाएगा, ओके। अब इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। So पहले क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, ठीक है। I'll read out the question 1 for you. The question is, a particle of charge q and mass m, which is moving in one-dimensional harmonic potential of frequency omega, is subjected to weak electric field E in x direction. Now, what we have to find is the exact expression for energy, that is the energy which come out after perturbation, that is exact energy En plus En1, and En1 is phi m perturbed Hamiltonian phi m, and calculate the energy to first non-zero correction and compare it with exact result that you will obtain in the first case, okay. So as you all know that when a
particle is subjected to electric field, its Hamiltonian becomes plus QEX. So Hamiltonian can be written as H naught, the exact Hamiltonian, plus the perturbed Hamiltonian. Exact Hamiltonian, you all know, is minus H cross square by 2m d2 by dx square plus half m omega square x square plus the perturbed Hamiltonian QEX. This is exact Hamiltonian for harmonic oscillator, and this is your perturbed Hamiltonian. Now, your perturbed Hamiltonian is H naught plus He minus H cross square by 2m d2 by dx square plus half m omega square x square plus QEX. Okay. Now, in order to obtain the exact energy, what we can assume is we can separate the variable by assuming y as x cap plus QE. This is done in order to easier your mathematics. Omega square, and the Hamiltonian comes out to be minus H cross square 2m d2 by dy square plus half m omega square y square minus q square e square by 2m omega square. This Hamiltonian of a harmonic oscillator, if you subtract this term, which is constant, from your energy, then you will get the exact energy for the Hamiltonian. Now, what is the exact energy? You know that exact energy for harmonic oscillator is n plus half h cross omega. Now, you have to subtract the constant term which you have get in your Hamiltonian. Now, this is your total energy, the exact energy plus perturbed energy. If you haven't understood it, then look at here. H naught cat of psi. Psi you can assume cat, as you all know that in Hamiltonian we use notation cat of n. So H naught cat of n is equal to En cat of n. Now when you operate H naught, or in case H, then you will get energy. This q square e square by 2m omega square, this is a constant term. When operated on cat of n, then you'll get the same outside, and the bracket cat of n will comes out to be 1, and you will reduce getting energy as this. If we calculate the second order correction to this energy, then second order correction can be calculated as En1 is equal to q square, the constant term q square 2m omega square summation m not equals to n bra of m, your perturbed Hamiltonian, then x and n. And
E n0 minus E m0. Okay. I have used this equation, the last equation, which is this equation, the last equation. So here summation m naught equals to n, and your bracket phi n, HP phi n, if same equation, q square E square summation m not equals to n. Okay, I'll try to write more legibly. Okay, En. I hope now it's clear. Bra of m, x, your perturbed, ket of n, En0, Em0. These are exact energies related to m and related to n states. Okay. Now, in zero exact energy in zeroth state, we know that it is n plus half h cross omega, and we will assume that m to be any state like ket of n plus 1, n plus 2, n plus 3, any state, and we operate from 1, starting from 1 to m, and similarly n from 1 to n. And in between, if a situation arises where m is not equal to n, then that is not counted. Because if you take m is equal to n, this term will become 0 and your whole energy equation vanishes. Okay. That is why we are not using m is equal to n. Now, एक्सक्यूज मी सर, आशुतोष सर, yes. थोड़ा सा आप क्लियर लिखने की कोशिश करें, बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा आप सेपरेट Okay. लिखिए तो थोड़ा वो समझ पाए ज्यादा। Okay. तो एक एक करके लिखेंगे, एक एक करके जब हम ऑपरेट कराते जाएंगे इसमें m को पहले अगर n प्लस 1 लेंगे, x को ऑपरेट कराएंगे ket of n, देन और x आपको पता होगा इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर में x ऑपरेटर को कैसे लिखा जाता है, तो उसको जब इसमें पुट करेंगे तो आंसर वी विल गेट इज अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 अंडर रूट ऑफ h क्रॉस बाय 2m ओमेगा। ये आता है h क्रॉस बाय 2m ओमेगा 8 डैगर
plus A. Okay. Now again, using ket of n minus 1 and n, we get root n under root h cross 2m omega. Now, and the energy m0 minus En0 comes out to be, if they now you can ask me a question that why we have using these n plus 1 and only n minus 1, because only these two states will survive and rest of the state your answer will comes out to be 0. तो यही दो स्टेट हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वेशन में, बाकी के से कंट्रीब्यूशन आपका 0 आएगा. ठीक है, तो m को पुट करेंगे n+1 और मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेट का अगर ले लेंगे तो आपके पास आंसर h क्रॉस ओमेगा आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक के लिए m n होगा और m n n होगा और m n+1 होगा, फिर n n होगा और n -1 होगा, तो दोनों के लिए आपके पास जो आंसर आएगा वो h क्रॉस ओमेगा आएगा. ठीक है, अब तो हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी में. q स्क्वायर e स्क्वायर 2m ओमेगा स्क्वायर, समीशन में सिर्फ दो टर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, बाकी समीशन से सारी टर्म 0 आ जाएंगी, तो सिर्फ दो टर्म लेंगे और एक टर्म आपके पास आएगी रूट ऑफ n+1 अंडर रूट h क्रॉस बाय m ओमेगा प्लस this one is from e n+1 0 minus e n 0 and root of n under root h cross by 2m omega e n minus e n minus 1. Okay, this term remain as it is, root n+1 under root h cross omega और प्लस, ओके वहां पे स्क्वायर भी था. ठीक है, उस वाले टर्म में, तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो n+1 और h क्रॉस बाय 2m ओमेगा को बाहर ले लें तो अंदर n+1 डिवाइड में यहां पे बचेगा h क्रॉस ओमेगा, इसमें n बचेगा और इससे जो टर्म आएगा वो माइनस h क्रॉस ओमेगा आएगा, तो माइनस n h क्रॉस ओमेगा, n and n gets cancelled out. Please wait, let me take another slide. Okay, I have to clear this. Okay, now we were left at En, second order correction, q square e square by into h cross by 2m omega bracket n+1 by h cross omega minus m by n by h cross omega. N and n gets cancelled out, and what you are left is q square e square h cross
by 2m omega h cross omega. H cross and h cross gets cancelled out, and you get q square e square by 2m omega square. So your second order correction comes out to be q square e square by 2m omega square. First order correction was E1, you have calculated as q square e square by 2m omega square. And second order is same as q square e square by 2m omega square. With okay, so the total energy term will become En is equal to exact energy plus first order correction plus second order correction. Okay. I hope you are clear with this. Now, I'll request you to go through these two questions, and if you have any problem, then we will discuss these two questions tomorrow. Now, we will start with the degenerate perturbation theory. Till now, we have discussed about the non-degenerate perturbation theory. What we mean by non-degenerate perturbation theory is non-degenerate means your energy En have only one eigenstate. That is, for every energy, there correspond only single eigenstate. And when we talk about degenerate eigenstate, then for a single energy, there can exist n number of eigenstate, ket of phi n1, ket of phi n2, ket of phi n3, so on and so forth. Okay. For example, consider the case of particle in one dimension box. Energy, what energy you will get is n square h cross square by pi square by 2 ml square, where L is the length of this box. Okay. This energy is non-degenerate energy because for every wave function ket of phi n, there exists only one energy. For example, for ket of phi 1, you will get h cross square pi square by 2 ml square. For phi 2, you get 4 h cross square pi square by 2 ml square. Okay. Now, as you increase the degeneracy, as you increase the dimension of this box, that is, when you go from one dimension to two dimension, the degeneracy comes into the picture. That is, now your energy becomes nx square plus ni square. I'm not going into the detail of this particle in box because I hope you all are through with this concept. Okay. 2 ml square. Now, this is the energy nx and ny. Consider the case that nx is 2 and ny is 1. Now your energy becomes 5 pi square h cross square by 2 ml square. And for this, you have two different wave function, ket of phi n nx1 n1 and
phi n x2 y1. Okay, or different state ket of n x1 phi n y2. These two states will have same energy, and the degeneracy what is the physical interpretation of degenerate and non-degenerate here? फिजिकल इंटरप्रिटेशन से ये मतलब होता है कि आपके उतने स्टेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एक सिमिलर एनर्जी के लिए आपको उतने स्टेट मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 2D से 3D में जाएंगे तो डिजेनरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारा कंसेप्ट पार्टिकल इन अ बॉक्स नहीं है, परटर्बेशन थ्योरी है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कंसिडर करते हैं, कैन वी सोल्व इनहोमोजेनियस इलेक्ट्रॉन गैस यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी इंस्टेड ऑफ वेरिएशनल वेरिएशनल I have told you earlier also that variational principle, by variational principle, पहली बात आपको वेरिएशन प्रिंसिपल के साथ ये है कि आपको उसका ट्रायल फंक्शन पता होना चाहिए, उसके ट्रायल फंक्शन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या क्या कंडीशंस इंपोज्ड हैं। अगर आप उसका ट्रायल फंक्शन अज्यूम कर पाते हो तो आप वेरिएशन प्रिंसिपल के साथ जा सकते हो। दूसरी कंडीशन, दूसरी दिक्कत वेरिएशन प्रिंसिपल के साथ ये है कि आप उससे जो एग्जैक्टली फाइंड कर पाओगे वो अपर बाउंड स्टेट कैलकुलेट कर पाते हो वेरिएशन प्रिंसिपल से। जो आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आएगी वो ही ज्यादा एक्यूरेट आती है। जैसे जैसे हायर स्टेट पे जाते चले जाओगे उसके साथ आपको एनर्जी एक्यूरेट नहीं मिल पाएगी। परटर्बेशन के साथ क्या है, परटर्बेशन के साथ आपको एक्यूरेट एनर्जी मिलती चली जाएगी, लेकिन हर किसी की दिक्कत है ना। देखो जो भी टॉपिक पढ़ते हैं हर किसी की लिमिटेशंस होती है। परटर्बेशन की थ्योरी की लिमिटेशन ये है कि आपका जो हैमिल्टोनियन है जो स्लाइटली डिफरेंट है एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन से, उसको आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। अगर आपका हैमिल्टोनियन हाफ के एक्स स्क्वायर है, या अगर हाइड्रोजन एटम में ले लें तो आपका जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर है। अब इसको अगर आप किसी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रख दो जो हैमिल्टोनियन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो कि इलेक्ट्रॉन ही नॉकआउट हो जाए, वहां पे परटर्बेशन कैसे यूज कर पाएंगे? क्योंकि परटर्बेशन क्या बोलता है, परटर्बेशन थ्योरी बोलती है कि जो आपका हैमिल्टोनियन एचपी है वो स्लाइटली वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है। आई होप योर आंसर इज क्लियर। तो हम डिजेनरेशन थ्योरी की बात कर रहे थे, और डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी में क्या होता है कि आपका जो एनर्जी है En, उसको हम F फोल्ड डिजेनरेट मान लेते हैं। मुझे F अच्छा लगता है इसलिए मैंने F बोल दिया, आप N बीटा गामा अल्फा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ डिजेनरेसी है, एग्जिस्ट करती है एनर्जी में, तो उस केस में हम डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज करेंगे। डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज करने के लिए सेम वही मेथड फॉलो करेंगे। अगर ये हमारा जो आपका वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन को हम लिख सकते हैं कैट ऑफ एन अल्फा। अल्फा आपकी डिजेनरेसी है। अगर वन फोल्ड डिजेनरेस है तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 फोल्ड है 3 आ जाएगा, F फोल्ड है F फोल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो जितने फोल्ड डिजेनरेसी होगी उतने ही आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। और एग्जैक्ट तो आप सोल्व कर, एग्जैक्ट तो ये तो पहले से ही अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एग्जैक्ट इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन वो आप सोल्व कर सकते हो, और उससे आपको एनर्जी एग्जैक्ट मिलेगी, और वो एग्जैक्ट एनर्जी आपकी F फोल्ड डिजेनरेट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो आपका वेव फंक्शन है उसको अज्यूम करते हैं कि वो आपका वेव फंक्शन कैट ऑफ फाई एम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में, उसको लिख देते हैं अल्फा। ये कोई कांस्टेंट है, जैसे आपने अज्यूम करा भी होगा कि अगर कोई वेव फंक्शन आप लिखते हैं तो 1/√2 कैट ऑफ फाई 1, ये जो √2 है, ठीक है, प्लस 1/, अगर डिजेनरेसी वाला केस में जो आपको पहले समझाया था NX12 का, तो ये 1/2 है,
और ये कैट रूट 5 ले लिया, ठीक है, और ये आपका कैट ऑफ n21 हो गया, तो ये जो 1/√2 और 1/√5 है, ये आपका a अल्फा अल्फा देगा, मतलब अल्फा आपका हो गया 1/√2 और 1/√5, और ये स्मॉल अल्फा आपका स्टेट डिनोट कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। If anybody of you getting any problem in Hindi, then do let me know in the chat box, okay? Now, just a second. Let me take a blank page. Okay, here we are. Okay, so this is the Schrodinger equation H is equal to E psi, और शुरू से ही हम अज्यूम करके आए हैं कि आपका H जो है वो H0 E psi प्लस HP psi, और ये आपको En psi n दे देगा, ठीक है। अब जो H0 psi n है वो E0 एग्जैक्ट एनर्जी दे देगा, ठीक है। तो और psi n आपने एज्यूम किया हुआ है psi n टू बी summation of alpha alpha phi n alpha, ठीक है, where alpha goes from 1 to f, ठीक है। अब इस अल्फा को psi n की जगह रखेंगे और हमारी इक्वेशन हो जाएगी H0, समीशन को मैं बाहर ले लेता हूं, अल्फा फ्रॉम 1 to f अल्फा अल्फा, just a second, alpha phi n alpha plus HP phi n alpha is equal to En phi n alpha, ओके। अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो जस्ट सेकेंड, तो हमारे पास आ गया था कि H0 phi n alpha plus HP phi n alpha is equal to En phi of n alpha। अब हम अज्यूम करते हैं कि जो आपका phi n alpha है ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाता है, दैट इज phi of nl alpha ब्रैकेट phi of nl beta is chronicle delta alpha beta, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा बराबर होंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, और अल्फा बीटा बराबर नहीं होंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन phi n अल्फा को ओके, समीशन, ये समीशन बाहर रहेगा आपका, समीशन a अल्फा वेयर अल्फा 1 to f, ठीक है। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया है, अब हम क्या करेंगे कि इधर भी सेम ऐसे आएगा, समीशन अल्फा 1 to f। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रा ऑफ n अल्फा बीटा से, इस इक्वेशन में जब हम इस इक्वेशन में ब्रा ऑफ n अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा फ्रॉम 1 to f phi n beta H0 phi of
NL alpha plus bra of N beta HP phi of N alpha is equal to summation over alpha 1 to F En bracket cat of bra of N beta and cat of N alpha. Now N beta alpha H naught. When H naught operated on N alpha beta, it will give En exact energy, because this is a exact Hamiltonian. It will give exact energy En and bracket N beta phi N alpha. This will remain as it is, and this bracket will give you Kronecker delta beta alpha. ओके, अगर यहां तक सब क्लियर है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा था? आपके पास आया था कि you are left with summation alpha 1 to F A alpha En En0, और वो जो उधर ब्रैकेट के बाद इधर 0 लिखा हुआ था उसको भी इधर ले आते हैं, ठीक है। En ब्रैकेट, या तो फाइ एक काम करते हैं, क्रोनिकर डेल्टा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो क्रोनिकल डेल्टा बीटा अल्फा प्लस फाइ एन अल्फा एच पी, ओके, बीटा फाइ एन अल्फा इज इक्वल टू 0. Now we'll assume that okay, this En minus En0 will be, En आपका एग्जैक्ट एनर्जी थी और ये आपकी परटर्बेशन के बाद जो आई थी, तो ये आपका आ जाएगा En में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ओके। अब इसको अगर यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन ओवर अल्फा 1 to F माइनस ऑफ En1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं HP अल्फा बीटा क्रोनिकर डेल्टा, ठीक है। और इसके साथ भी क्रोनिकर डेल्टा आएगा बीटा अल्फा, यहां भी बीटा अल्फा आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0. अब आपके पास ये जो निकल के आया है ये आपका एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बन जाएगा। अल्फा और बीटा कहां तक जाएंगे? अल्फा एंड बीटा will go from 1 to F. जब हम इसको प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या इक्वेशन थी हमारे पास? हमारे पास इक्वेशन थी HP क्रोनिकर डेल्टा अल्फा बीटा
summation over a, okay, summation over a alpha 1 to f minus e n1 is equal to 0। ये क्वेश्चन है। तो a अल्फा तो आपका 0 नहीं हो सकता, तो आपकी ये टर्म 0 आएगी। और जब आप इस इक्वेशन को अपलोड करोगे तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगी, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और उस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट कुछ इस तरह से होंगे। अल्फा बीटा को हम लिखना शुरू करेंगे 1 से लेके f तक, और बीटा को भी 1 से लेके f तक। तो एक काम करते हैं, इधर हम अल्फा लिखते हैं, ठीक है, और इधर हम बीटा लिखते हैं। मतलब इधर अल्फा 1 2 3 4 f, ऐसे ही इधर बीटा 1 2 3 f तक, ठीक है। तो अल्फा भी 1 बीटा भी 1। तो जब, और क्रोनिकल डेल्टा, एज यू ऑल नो दैट व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, क्रोनिकल डेल्टा अल्फा बीटा विल गिव यू 1, अदरवाइज 0। ओके, तो HP1 1 माइनस E1, तो यहां ये डेल्टा नहीं आएगा, सॉरी ये गलती से आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा अल्फा बीटा, क्योंकि ये तो अगर क्रोनिकल डेल्टा ना भी लगाएं तो जब आप ओनली डायगोनल एलिमेंट, हाँ हाँ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। एच पी, वो डिपेंड करेगा डायगोनल एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपका मैट्रिक्स बनेगा उसमें HP1, ये जो ब्रैकेट है ना, कैट ऑफ फाई एन बीटा HP कैट ऑफ फाई एन अल्फा, ये जो ब्रैकेट है ना, इसी को मैंने HP अल्फा बीटा लिखा है। अब अगर ये HP अल्फा बीटा आपका 0 हो जाता है, ठीक है, अगर ये सारे एलिमेंट आपके 0 हो जाते हैं तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बचेंगे। अगर ये HP11 HP12 HP13 HP21 HP22 HP3113, अगर ये एलिमेंट 0 नहीं होते हैं तो आपके पूरी मैट्रिक्स बचेगी, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नहीं बचेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो आपका ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट जो बनाया है, ये ब्रैकेट 0 होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे आएगा HP12 HP13 एंड सो ऑन HP1F, क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा इस केस में यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा है, ये क्रोनिकल डेल्टा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ही 1 1 होगा, 1 1 के लिए होगा, 2 2 के लिए। एनर्जी जो टर्म आएगी वो 1 1 के लिए आएगी, 2 2 के लिए आएगी, 3 3 के लिए आएगी। तो एनर्जी टर्म सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आएगी, बाकी ये टर्म 0 होगा या नहीं होगा ये इस ब्रैकेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमारा दूसरी टर्म आएगी H21 H22 माइनस EN1 HP23 एंड 2F। सिमिलरली आप ऐसे आएंगे और यहाँ पे आएगा HPF1 HPF2 HPF3, और ऐसे चलते चलते यहाँ पे लास्ट में आपके पास टर्म आ जाएगी HPFF माइनस ENF1, और ये पूरी टर्म इक्वल्स टू 0 आएगी। ये जितना भी मैंने समझाया है अभी, ये पूरा आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। और PDF आपको YouTube पे मिल जाएगी, या मैं WhatsApp ग्रुप में भी डाल दूंगा। लेकिन कल आपका जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं ये सब डाल दूंगा, ठीक है। नाउ
इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एंड अबाउट वेरिएशनल एंड डब्ल्यू के भी वो हम कल देखेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी में दोनों डीजेनरेट नॉन डीजेनरेट, करेक्शन वेव फंक्शन में करेक्शन, एनर्जी में करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आप पढ़ लीजिए। अगर आपको कल कोई दिक्कत आती है तो कल आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सर एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन फंक्शन? नॉर्मलाइजेशन फंक्शन देखो, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन वो फंक्शन होता है कि नॉर्मलाइजेशन फंक्शन होता है अगर कोई फंक्शन है साई, ठीक है, और उसका ब्रैकेट अगर 1 आ जा रहा है तो उस वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइजेशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका रेलेवेंस क्या है, आपको पता है कि जो ये ब्रैकेट है कैट ऑफ साई साई, जस्ट अ सेकेंड, ओके वी आर देयर। जैसे कि आपको पता है कि ये ब्रैकेट है, ये प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है किसी पार्टिकल के फाइंडिंग, लाइक्लीहुड की प्रोबेबिलिटी बताता है कि कोई पार्टिकल किसी जगह पे है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 आ जाएगी। आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से कम रहे, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि या तो श्योरली वो पार्टिकल वहां पे है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी 0 होगी, ठीक है, या तो पार्टिकल होगा या पार्टिकल नहीं होगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी तो 0.5 भी होती है, तो 0.5 का मतलब ये नहीं होगा कि पार्टिकल आधा पार्टिकल वहां पे मिलेगा और आधा पार्टिकल नहीं मिलेगा। 0.5 का मतलब ये होता है जब कभी भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट बीम ऑफ पार्टिकल्स। हम सिंगल पार्टिकल की कभी बात नहीं करते हैं। हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं बीम ऑफ पार्टिकल्स की। एक साथ 100 पार्टिकल इंसिडेंट होंगे, 1000 पार्टिकल इंसिडेंट होंगे। तो अगर आपका आंसर 0.6 आ रहा है या 0.5 आ रहा है या 0.7 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर 100 पार्टिकल इंसिडेंट हुए थे तो उनमें से 60 पार्टिकल वहां पे मिल जाएंगे या 70 पार्टिकल मिल जाएंगे, बाकी के पार्टिकल नहीं मिलेंगे। अगर 1 आ रही है प्रोबेबिलिटी तो सारे पार्टिकल वहां पे हैं, 0 आ रही है तो एक भी पार्टिकल नहीं है। आई होप आई हैव मेड यू क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। एनी अदर क्वेश्चन? आतिश, नो सर। आपका आंसर क्लियर हो गया? आतिश, इज योर डाउट क्लियर या आपको और कुछ पूछना है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हिंदी में ना समझ में आया हो या इंग्लिश में ना समझ में आया हो? सर स्टूडेंट लिख रहे हैं नो, नो क्वेश्चन ओके लेफ्ट। ओके 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 ओके, देन वी कैन एंड द लेक्चर। ओके, बेडी सर, बेडी सर। हाँ बेडी सर आप आ अनम्यूट रही है, आवाज आ रही है? हाँ सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल साफ आ रही है। वी कैन हियर यू। चलिए पार्टिसिपेंट्स के कोई और प्रश्न ना होने के कारण मैं थैंक्स करता हूँ श्री आशुतोष शर्मा जी को कि उन्होंने बहुत Thank ही you, sir. अच्छे प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स जैसे विषय को, जिसमें प्रोबेबिलिटी है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ में क्वांटम मैकेनिक्स को बताने का प्रयास किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो पार्टिसिपेंट्स इस लेक्चर को सुन रहे होंगे उनको ये पर्टर्बेशन थ्योरी के एग्जांपल्स कुछ समझ में निश्चित रूप से आए होंगे। तो आई थैंक डॉक्टर आशुतोष शर्मा। फिर क्लोज करो। ठीक है सर, ऑन द बिहाफ ऑफ आवर स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई क्लोज द मीटिंग। थैंक यू सर।